Hey everyone, how are you? Hope all of you are fine and enjoying your life. Did you ever wonder what is actually inside your body and how your body is made up of? Our body is made up of different kinds of cells. So, to understand our body, to understand the biology of life, what we need to learn basically is the structure and function of the cell. Let's dive into the fascinating world of the cell biology. Everything around us, either it is big or either it is small, either it is living or non-living, it is composed of cells. So here is the outline of our main topic, that is what is cell, cell क्या है, history of cell theory, सेल थेरी की हिस्ट्री क्या है, इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया और कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स या पॉस्टुलेट्स हैं सेल थेरी के जो कि पेश किए गए ओवर द टाइम. As we know that there is a base for the building of a house. जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी घर की तमीर के लिए जो बेसिक चीज़ है वो है ईंटें. अगर ईंटें ही ना हों तो घर कभी भी वजूद में नहीं आ सकता. इसी तरह तमाम जानदार जो ज़मीन पर मौजूद हैं, आया वो ज़िंदा हैं, मुर्दा हैं, किसी भी हालत में हैं, वो किस तरह बने, इसके लिए शुरू से स्कॉलर्स, मुख्तलिफ फ़िलासफ़र्स और सोचने वाले लोग इसके बारे में सोचते रहे और तहक़ीक़ात करते रहे. कुछ ने अपनी खुद की माइक्रोस्कोप्स बनाई और उसमें से ऑब्ज़र्व किया सेल. इसमें सबसे पहले आते हैं ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू ऑर्गेनाइज डाटा ऑफ नेचुरल वर्ल्ड. उन्होंने जो तबई ज़िंदगी है, तबई दुनिया है, इसमें मौजूद डाटा को कलेक्ट किया. इसके बाद आ जाते हैं एरिस्टोटल ने जो इसके बारे में आइडिया दिया, उसने बस ये बताया कि एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं इनका कोई ना कोई आपस में लिंक ज़रूर है, दे आर समहाउ रिलेटेड. आफ्टर दिस idea gave rise to the questions like, is there a fundamental unit of structure shared by all organisms? क्या वाकई तमाम जानदारों का कोई एक बुनियादी जुज़ है जिसकी वजह से तमाम जानदार वजूद में आए? इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था वो था रॉबर्ट हुक का. उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्ज़ामिन किया स्लाइस ऑफ कॉर्ड, एक दरख्त की छाल को उन्होंने अपनी खुद की बनाई हुई माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्ज़र्व किया और उसमें उन्हें हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स, खाली कंपार्टमेंट्स नज़र आए जिनके लिए उन्होंने सेलुलाई की टर्म यूज़ की. Today we have the term cell. Actually, it comes from the word celluli, named by Robert Hooke in 1665. Later on, a scientist, actually a Dutch naturalist, that is Antony van Leeuwenhoek, he observed tiny organisms that actually come from the pond water under his own microscope and named them as animalcules because of their movement. For another century and a half, actually, there is no appreciated contribution to cell proposal. In 1809, Jean-Baptiste de Lamarck proposed that nobody can have cell life if its parts are not cellular tissues and are not formed by cellular tissues. कोई भी जानदार ज़िंदगी नहीं रख सकता जब तक कि उसका जिस्म सेलुलर टिश्यू से मिलकर ना बना हो. After it, a British scientist, that is Robert Brown, discovered the nucleus of the cell. In 1838, a German botanist, that is Matthias Sheldon, studied that plant tissues are made up of cells, and it was the first statement of the cell theory. He also stated that the whole plant is actually the aggregation of individual cells which are fully independent in their nature. After 1 year, in 1839, a German zoologist, that is Theodor Schwann, reported that all animal tissues are also composed of individual cells. एक्चुअली मैथियस शील्डन और थियोडर शवान इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को कीनली ऑब्ज़र्व किया और ये स्टेटमेंट दी कि तमाम बॉडी जो प्लांट की है यहाँ पे एनिमल्स की है वो इंडिविजुअल सेल से मिलके बनी है. इसके बाद 1855 में रुडोल्फ विर्चू थे जिनने
एक्सटेंशन की सेल थ्योरी की और उन्होंने प्रपोज किया डेट ऑल लिविंग थिंग्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब ये कि सेल अराइज कहाँ से होते हैं, एक्चुअली जो पहले से सेल्स मौजूद होते हैं वो डिवाइड होते हैं और न्यू सेल्स बनते हैं। इसके लिए उन्होंने स्टेटमेंट दी दैट इज़ ओमिनस सेलुलुला ई सेलुलुला, that is that cells originate from the already present cells. So cell theory is regarded as one of the most fundamental knowledge in the biology as it has wide ranging effects in all fields of the research. ये एक फंडामेंटल चीज़ है जिसको समझे बगैर हम साइंस को स्टडी नहीं कर सकते और इसका साइंस के अदर फील्ड के अंदर भी बहुत वाइडली इफ़ेक्ट है। सो all living things are composed of cells, one or more cell, either it is one or more। तमाम जिंदा जानदार एक या ज़्यादा सेल्स के मजमूए से बने हैं। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, दैट इज़ इट इज़ एक्चुअली द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये तमाम जानदारों की ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है। और तीसरा पोस्टुलेट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाउ दे अराइज, सेल्स अराइज ओनली बाय डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स हमेशा पहले से मौजूद सेल्स में डिवीजन के बाद वजूद में आते हैं। ये 3 पोस्टुलेट्स हैं मेन सेल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर योर पेशेंस। Thank you for watching my presentation on cell theory. Don't forget to like, subscribe, and to enjoy and learn many more facts about life. Also hit the notification bell for more content like this. Stay tuned for exploring my upcoming videos.